We have started the unit of laser, and we have discussed about the description, what is laser, what are its properties, and I think we have started with the three types of transitions. Okay, so we have discussed that first one is absorption. It is also called stimulated absorption. Okay, second one is spontaneous emission. Then third one is stimulated emission. Okay, so first one, I'll repeat it. What these phenomena are. So in case of absorption, if we consider the two energy levels, first and second, first is your ground state energy level, and second is excited state. First excited state, any one of the excited state. Now, if a photon of energy h nu such that h nu is equal to E2 minus E1. If it satisfies this condition that its energy is exactly equal to difference between the energies of these two levels. If this photon collides with this atom, it will absorb this photon and goes to excited state. It will rise to excited state like this. After collision. So this is absorption of photon. So this is or stimulated absorption. Now, if it is in excited state, I have discussed that the lifetime of ground state is infinity and excited state is approximately 10 raised to the minus 8 seconds. So this atom will stay here for this much time and it will come down to ground state by again emitting the energy in terms of photons. Okay. So the second is spontaneous emission. So atom is in excited state. This level has half-life of lifetime of this 10 raised to minus 8 seconds. It will de-excite by moving to ground state and emitting the photon of this much energy. This is spontaneous emission, and this is usual phenomena. It collides with atom, gain energy, goes to excited state, it de-excite by emitting the energy. फर्स्ट क्या था सर? Absorption. ओके सर. Photon is absorbed, atom goes to excited state. Photon is emitted because atom de-excites because of spontaneous emission. Spontaneous emission. Okay sir. So this happens because the lifetime of atom in excited state is only this much seconds. So it has to jump down. Okay? And one more thing, if there are multiple atoms, like if I place more atoms here, because there is not only a single atom, there are many atoms. So if they de-excite by jumping down or de-exciting, and if they emit photon, okay, they are in random directions. All right. So they are not coherent with respect to initial photon. This one. Okay. So in spontaneous emission, you are not getting the laser because laser is coherent. So what we have now is third one is stimulated emission. Again, we consider the same scene: ground state, excited state. Atom now is initially in excited state. For example, it already gained one photon. If another photon, photon number 2 of energy h nu, such that h nu is equal to E2 minus E1, if this photon interact with an atom in excited state, if this photon interact with this atom, okay, and induce या stimulate transition back to E1, this photon is forcing this atom to move in resonance with the frequency of this photon. This photon has frequency nu, and if this atom starts oscillating, it will jump down like this. Now we have two photons. First one is this one, and second one we are gaining when atom de-excite to ground state. Now these two photons, they are coherent. They are coherent in nature. They have same frequency. They are maintaining the same phase or same state of polarization as well. Okay, so their plane of vibration and plane of polarization, they both are same. Okay, so in this way we see that
we have already multiplied the original h nu by 2 times. We have 2 h nu now. ठीक है जी. Rate of stimulated absorption. This is not absorption, this is emission. Rate of stimulated emission depends both on intensity of incident photon, this one, and on number of atoms in lower energy state. So इसके पास कितने एटम्स हैं इस पे भी डिपेंड करेगा. ठीक है जी. Excuse me, sir. हाँ जी. सर ये इसका मतलब है कि जो एनर्जी लगी है फोटोन को ये एटम को ग्राउंड स्टेट में लाने के लिए उससे वो एक फोटोन 2 में हो गया. हाँ. मल्टीप्लाई. Yes. And if there are multiple photons, एक atom तो होगा नहीं, multiple atoms in excited state. So you see, a single photon can force all of these atoms to oscillate in this frequency, in resonance with each other. Now, if there are 10 photons, then one photon will multiply by 10 in output. ठीक है. So इस तरह से आपके पास photons और भी आ जाएंगे. So single seed photon, this is seed photon. Single photon forces or stimulate the atoms in excited state to oscillate with the same frequency as that of this seed photon. And if they start oscillating, they will de-excite and come to ground state by emitting the energy such that energy कितनी होनी चाहिए? E2 से jump किया E1 में चले गए. So according to Einstein equation, its energy should be, photon energy should be h nu is equal to E2 minus E1. ठीक है जी. So आपके पास number multiply हो रहा है. They all have same state of polarization and coherence. ठीक है जी. So ये टेक्स्ट में लिखा हुआ है कि क्या क्या फिनोमेना है. So मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ. Now the total probability of emission. अब हमने दो तरह की emission की है. So एक तो है हमारे पास spontaneous emission. ठीक है. यहां से एटम जंप करके यहां चला गया because of lesser lifetime. So this is spontaneous emission. Second one we have कि हमारे पास फिर से वही सेम एनर्जी लेवल्स हैं E1 and E2. Atom is in excited state. Another seed photon came and this will de-excite to here and we have 2 photons. So this is case number 1. This is case number 2. So this is spontaneous emission and this is stimulated emission. The total probability of emission transition from E2 to E1, excited state से ground state में जाने के लिए, is the sum of probability of individual phenomena. So spontaneous emission और stimulated emission, इन दोनों की जो probability होगी, probability of spontaneous emission and probability of stimulated emission. Spontaneous and stimulated. So इन दोनों के सम के बराबर होगी. ठीक है जी. दोनों पॉसिबिलिटीज हैं कि वो spontaneous emission भी कर जाए अगर उसको seed photon नहीं मिला और stimulated भी कर जाए when it faces or encounters seed photon. So this third phenomena, that is stimulated emission, which multiplies the intensity of photon, is the must for laser action. So laser action to takes place, first requirement है कि आपका stimulated emission होना चाहिए. So any idea came to your mind कि और क्या condition होनी चाहिए? Any idea? Next करते हैं मुझे इसमें फिर. So ये diagrams हैं मुझे, ये represent कर रही हैं कि इन दोनों में से spontaneous emission या stimulated emission में क्या होगा, वो कैसे represent करना है. So if we have a photon of this shape, E1 and E2 are energy levels, atom is in excited state, and if we see that the amplitude, here you see the amplitude increases as compared to incident photon, it means stimulated emission. ठीक है जी. So अगर आपके amplitude wave का बढ़ जाए, so it means your intensity will be increasing. So that is why we call it as stimulated emission. Now if large second case करते हैं कि आपका जो photon है waves की form में हमने represent किया हुआ है, if atom is in ground state and it absorbs and it goes to excited state like this and there is no photon in the output, this is called absorption. ठीक है जी. So diagrams हैं,
एक्सप्लेन करने के लिए फिनोमेना को। नाउ अनदर फिनोमेना इज अटेन्युएशन। अटेन्युएशन में क्या होगा? A certain wave photon of certain energy amplitude, and these are atoms in ground state, E1 energy level, and E2 is excited state. So there are few atoms here. If in the output you have a wave of lesser amplitude, it means certain part of this energy h nu is absorbed by these atoms and they are moving to excited state. So that is why we have lesser amplitude. In other words, our amplitude is attenuated as compared to incident photon. We are getting lesser amplitude at the output. This is attenuation. ठीक है जी? Now, if we have another wave which has certain amplitude, ठीक है? Now, situation is we have lesser number of atoms in ground state as compared to number of atoms in excited state. So excited state में हमारे पास ज्यादा atoms हैं, and this incident photon will act as seed photon. If it passes through this molecule, it forces the atoms in excited state to de-excite by making them to oscillate in same frequency as that of the incident photon. ठीक है? So ये दोनों से स्टिमुलेटेड उसके सर एग्जांपल्स हैं सर। ये तो है आपका अब्जॉर्प्शन का, कि अब्जॉर्प्शन के केस में आपकी जो वेव है वो अटेन्युएट हो जाएगी, एम्पलीट्यूड डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप कुछ पोर्शन उसका यूज कर रहे हो फॉर एक्साइटिंग द एटम फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है जी। और ये जो है सेकंड वाला, ये है आपका स्टिमुलेटेड एमिशन, जिसको आप एम्पलीफिकेशन भी बोल सकते हो, एम्पलीफाई कर रहे हो सिग्नल को। सो एक फोटोन आपके जो ये एक्साइटेड स्टेट में एटम है, इनको फोर्स करेगा टू डी एक्साइट। नाउ यू सी दैट योर एम्पलीट्यूड एट आउटपुट इज लार्जर एज कंपेयर टू इंसिडेंट एम्पलीट्यूड, ठीक है। सो दिस इज हाउ एम्पलीफिकेशन इज अचीव्ड। सो आपकी एक कंडीशन तो थी कि आपका जो है लेजर एक्शन के लिए स्टिमुलेटेड एमिशन होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, आपके नंबर ऑफ फोटोन्स इन एक्साइटेड स्टेट से n2 and if number of photon in ground state n1, so आपका लेजर एक्शन कब पॉसिबल होगा? if you achieve population inversion, ठीक है जी। अच्छा, n2 n1 is population in ground state, n2 is in excited state, so कौन सा ज्यादा होगा बच्चे, n1 या n2? n1 is ground state, lifetime of infinity. n2 is excited state, lifetime of 10⁻⁸ seconds. So which number is larger, n1 or n2? n1 sir. n1. So in general n1 is greater than n2. If this is the situation, there will be no laser action. So in order to achieve the laser n action, क्या है सर? n is number of atoms Okay. in ground state or in excited state, ठीक है। So in order to achieve laser action, you have to make it to n1 less than n2. So your number of atoms should be larger in excited state as compared to ground state. ये होना चाहिए, तभी आपका ऊपर ये जो आपने सिचुएशन बनाई है कि एटम आपके एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा है एज कंपेयर टू ग्राउंड स्टेट, और एक फोटोन आया और आपका सिग्नल जो है काफी एम्पलीफाई हो गया, ये तभी पॉसिबल है ना, ठीक है। हाँ जी, पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होता है? population inversion is the process in which you are achieving this condition कि number of atoms in ground state are lesser as compared to excited state। आपने अभी क्या बताया कि population of atom in ground state जनरली क्या होता है कि अगर ये दो लेवल हैं आपके, ये ग्राउंड स्टेट है, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, सो आपकी टेंडेंसी क्या रहती है एटम्स की कि ग्राउंड स्टेट में रहे, और एक दो एटम हो सकता है एक्साइटेड स्टेट में चले जाएं। सो अगर n1 ये है और ये n2 है, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5, सो आपका n1 5 है, n2 है 2 ओनली, यहाँ 2 एटम्स हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। सो इफ दिस इज द सिचुएशन, यू कैन नॉट अचीव लेजर एक्शन। लेजर एक्शन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको n2 को इंक्रीज करना पड़ेगा,
विद रिस्पेक्ट टू n1। सो आपके ये जो सिचुएशन हमने बनाई है इस डायग्राम में, आप यहाँ देखो ब्लैक जो है सर्कल्स, दे आर मोर एज कंपेयर टू हॉलो व्हाइट सर्कल्स। ठीक है, तो दिस इज द सिचुएशन। सेकंड कंडीशन आपकी कि पॉपुलेशन इन्वर्जन होनी चाहिए। अच्छा, ये ऐसा अचीव करना पॉसिबल है भी कि ग्राउंड स्टेट से ज्यादा एटम आपके एक्साइटेड स्टेट में आ जाए? इज इट पॉसिबल? नो सर। बिकॉज एक का लाइफ टाइम तो 10⁻⁸ सेकंड है, एक इंफिनिटी। सो ये ऑफर कर रहा है। सो इस तरह की सिचुएशन तो पॉसिबल ही नहीं है। तो कोई एनी अदर सोल्यूशन व्हिच केम टू योर माइंड? क्या क्या सोल्यूशन कर सकते हैं मुझे? लेजर एक्शन तभी पॉसिबल है कि हमारी पॉपुलेशन इन्वर्जन आ जाए। तो इसका वन ऑफ द सोल्यूशन ये है कि हम इन दो एनर्जी लेवल्स में पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव करने की बजाय कोई और थर्ड लेवल इन बिटवीन ले लें, यहाँ कहीं एक और लेवल ले लें और उसके विद रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव कर लें। ठीक है, सो ये हम आगे पढ़ते हैं। सो ये सिंपल बजाय आपको पॉपुलेशन इन्वर्जन की डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए। अदरवाइज आप क्या है, आइंस्टाइन कोएफिशिएंट के थ्रू ये कंडीशन निकाल भी सकते हो कि पॉपुलेशन इन्वर्जन होती क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, बट दिस इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। सो पॉपुलेशन इन्वर्जन इज ni इज इक्वल टू n नॉट, यहाँ इसको ऐसे भी लिख सकते हो, n2 इज इक्वल टू n1 e raised to minus e of 2 divided by kt, बोल्ट्जमैन मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। सो n2 is equal to n1 e raised to minus e2 is the energy of excited state divided by k into t, k is Boltzmann constant, t is temperature in Kelvin। ठीक है जी, तो यहां से आपको क्लियरली पता लग रहा है कि n1 ज्यादा है क्योंकि n1 को 1 by एक्सपोनेंशियल किसी चीज से हम डिवाइड कर रहे हैं, तब हमारे पास n2 आ रहा है। तो n2 हमेशा कम ही रहेगा। ठीक है जी, सो दिस इज द सिचुएशन। ये पॉपुलेशन इन्वर्जन, इसका फॉर्मूला क्या है? ठीक है, सो ये जो मैंने अभी आपको बताया कि आपको n2 ग्रेटर देन n1 करना है, दिस इज द कंडीशन फॉर पॉपुलेशन इन्वर्जन। एक बार लास्ट स्लाइड लगा दी। ओके सर। सो ये डायग्राम है मुझे लेजर प्रिंसिपल एक्सप्लेन करने के लिए कि जो प्रॉब्लम हमारे पास है कि ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट, उनमें पॉपुलेशन इन्वर्जन हम अचीव कैसे करें। सो हमारे पास ये जो मैंने बताया कि इन बिटवीन एक और लेवल ले लेते हैं, दैट इज कॉल्ड मेटा स्टेबल लेवल। ये आपका ग्राउंड स्टेट है, ठीक है, और ये आपका एक्साइटेड स्टेट है। लेफ्ट साइड में देखना मुझे, एक्साइटेड स्टेट। अब इन दोनों के बीच में पॉपुलेशन इन्वर्जन करना। फॉर एग्जांपल अगर मैं बाहर से फोर्स लगाऊं भी, यहाँ से एटम फटाफट ऊपर से एक्साइटेड स्टेट में ले भी जाऊं, पर एक्साइटेड स्टेट का लाइफ टाइम ही इतना सा है 10⁻⁸ सेकंड कि इमीडिएटली ये इमिशन कर देगा। ठीक है, स्पॉन्टेनियस इमिशन हो जाएगी, इमीडिएटली इट विल कम डाउन, द एटम विल कम डाउन फ्रॉम E2 टू E0 या E1 भी लिख सकते हो इसको। ठीक है, तो हमारे पास लेजर एक्शन पॉसिबल नहीं होगा। सो we consider a particular molecule or atom which has another level like this. This has a lifetime of 10⁻³ seconds. Excited state has 10⁻⁸ seconds. This has ground state has life of infinity. So which one is greater, 10⁻⁸ or 10⁻�3? 10⁻⁻3. So it means the life of atoms in this metastable state is large. कितना large होगा? 10⁵ times large as compared to excited state. ठीक है, सो इसका क्या मतलब है कि मेटास्टेबल स्टेट और ग्राउंड स्टेट के विद रिस्पेक्ट टू अगर हम पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव करने की कोशिश करें तो हमारे पास 10⁵ टाइम्स एनर्जी कम लगानी पड़ेगी। ठीक है, 10⁵ का लाइफ टाइम का फैक्टर है यहाँ पे। ठीक है, सो ये है फर्स्ट सीन। सेकंड सीन में ये ट्रांजिशन शो की है कि E0 ग्राउंड स्टेट, E2 एक्साइटेड स्टेट। तो हम क्या करते हैं कि E2 से अपने जो एटम है यहां भेज देते हैं E1 लेवल में, क्योंकि E1 लेवल में वो ज्यादा देर तक रहते हैं एज कंपेयर टू E2। तो E2 में आ गए, E1 में आ गए, मेटास्टेबल स्टेट में MS, मेटास्टेबल स्टेट में आ गए। थर्ड सिचुएशन है कि अब ग्राउंड स्टेट तो खाली है, यहाँ कुछ एटम होंगे,
मेटास्टेबल स्टेट में एटम्स आ गए हैं अब, ठीक है। नाउ वी कैन अचीव पॉपुलेशन इन्वर्जन इजीली एज कंपेयर टू ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। पॉपुलेशन इन्वर्जन अगर हम E0 और E1 लेवल कंसीडर करें तो पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है वो डिफिकल्ट होगी, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट का लाइफ टाइम 10⁻⁸ है। बट अगर हम E0 और E2 विच इज मेटास्टेबल ये कंसिडर करें तो ये रिलेटिवली इजी होगा, इजियर नहीं होगा बट इसके मुकाबले जो डिफिकल्ट हम कह रहे हैं उसके मुकाबले रिलेटिवली इजियर होगा पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव करना, ठीक है जी। और फोर्थ सिचुएशन में क्या है, अब पॉपुलेशन इन्वर्जन अगर यहाँ नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा आ गए, दे विल, अब ये सीड फोटोन आया, दिस सीड फोटोन विल फोर्स दीज एटम्स टू कम डाउन एंड एमिट फोटोन इन रेजोनेंस विद द ओरिजिनल फोटोन, सीड फोटोन, ठीक है जी। क्लियर है बच्चा ये सिचुएशन कि मेटास्टेबल स्टेट वर्क कैसे करती है? यस सर। अब अगर आपको क्वेश्चन आता है कि आप विदाउट मेटास्टेबल स्टेट पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव कर सकते हो, सो हियर इज द आंसर, इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव लेजर एक्शन विद 2 levels ओनली, इट इज नॉट पॉसिबल कि आप लेजर बना लो जिसमें एक ग्राउंड स्टेट हो और एक्साइटेड स्टेट हो, सो यू नीड मिनिमम 3 levels, ठीक है जी। सर बेसिकली मेटास्टेबल स्टेट का यूज इसलिए किया क्योंकि उस पे एक्साइटेड स्टेट पे लाइफ टाइम बहुत कम थी। यस, इन सिंपल वर्ड्स, इफ यू वांट टू एक्साइट एटम फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, तो आपको एक्सटर्नल एनर्जी लगानी पड़ेगी कोई, बट अगर आपका जो एटम है एक्साइटेड स्टेट में रुक ही नहीं रहा है, वो इमीडिएटली स्पॉन्टेनियस एमिशन करके वापस आ रहा है, तो आप क्या करोगे? आपका मोटिव है कि ऊपर वाले जो लेवल में उसमें एटम ज्यादा देर तक रुके, तो इसलिए आपको मेटास्टेबल स्टेट वाले मॉलिक्यूल या एटम्स वो इंट्रोड्यूस करवाने पड़े, ठीक है। मेटास्टेबल स्टेट सा क्लियर नहीं हुआ सर। मेटास्टेबल स्टेट ये नाम से क्लियर अब जाए, मेटास्टेबल, सो स्टेबल तो है बट उतना नहीं है जितना ग्राउंड स्टेट है, ठीक है। सो दीज आर लेस स्टेबल as compared to ground state, but these are more stable as compared to excited state. Metastable state में एटम 10⁻³ सेकेंड्स के लिए रहता है और एक्साइटेड स्टेट में एटम जो है 10⁻8 सेकेंड्स के लिए रहता है, so it means metastable states are more stable as compared to excited state. सर तो एक्साइटेड में जाके फिर दोबारा मेटा स्टेट में आते हैं सर? Yes, yes. ओके सर, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट से मेटा स्टेट में कैसे आता है? स्पॉन्टेनियस एमिशन। स्पॉन्टेनियस एमिशन, स्पॉन्टेनियस एमिशन, नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन, कोई भी फिनोमेना आप यूज करो वो मेटास्टेबल स्टेट में आनी चाहिए। सो आप हर किसी मॉलिक्यूल या एटम के साथ हर लेजर एक्शन नहीं कर सकते, आपको वही एटम्स या मॉलिक्यूल्स चूज करने पड़ेंगे जो ये चीज आपको फॉलो करते हैं, जो इन ट्रांजिशंस को अलाउ करते हैं, ठीक है। ओके सर। सो लेजर प्रिंसिपल में नंबर ऑफ वेज एग्जिस्ट टू प्रोड्यूस पॉपुलेशन इन्वर्जन। अब पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव करने के लिए आपको एक्सटर्नल एनर्जी लगानी पड़ेगी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पंपिंग, ठीक है। यू आर पंपिंग अप द ग्राउंड स्टेट एटम टू एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। सो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड पंपिंग। इफ a steady state population inversion cannot be created between 2 levels just by pumping between these levels, so जैसे मैंने अभी कहा कि ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आप कितनी मर्जी एनर्जी लगा लो, क्योंकि लाइफ टाइम है ही नहीं एक्साइटेड स्टेट का, सो आप पॉपुलेशन इन्वर्जन n2 will never be greater than n1 in case of 2 levels only, so that is why laser action is not possible in 2 level laser. So in order to produce a steady state population inversion, we have to make use of either 3 level lasers or 4 level lasers. So 4 level, 5 level depend करता है आप क्या मॉलिक्यूल यूज कर रहे हो, so minimum तो आपको 3 level चाहिए, so 3 levels are required for laser action. 3 level कौन से हैं? First is ground state, second is excited state and third one is metastable state. So सबसे सिंपल जो लेजर है वो 3 level लेजर है, ठीक है। It uses an assembly of atom or molecule that have a metastable state in energy above the ground state, so ground state से ऊपर चाहिए आपको, and a still higher excited state.
सो इससे ऊपर भी आपको एक एक्साइटेड स्टेट चाहिए। सो आपकी सबसे पहले जो एनर्जी आएगी ग्राउंड स्टेट लोएस्ट, उसके ऊपर जो है मेटास्टेबल स्टेट और उसके ऊपर ग्राउंड स्टेट। ठीक है। तो इसके बाद जब मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ये स्लाइड्स में नहीं है कि कंपोनेंट्स ऑफ I hope screen is visible. सर लेकिन ब्लैंक स्क्रीन। अच्छा सर, कनेक्शन लास्ट स्लाइड में प्रॉब्लम। डाउट है। हाँ जी बच्चे। सर इसके लास्ट, इसके पहले सर इसमें लेफ्ट साइड वाली रेडिएशन के कारण वो एक्साइट हो रहा है, लेकिन जो राइट साइड के रेडिएशन के कारण वो एक्साइट ना होके वो सिर्फ डी एक्साइट क्यों हो रहा है? यहाँ आपके पास देखो, पहली वाली जो लेफ्ट वाली सिचुएशन है, यहाँ एक्साइटेड स्टेट में आपके पास एटम कम है या ना के बराबर है, तो वो कोलाइड करेगा ग्राउंड स्टेट वाले के साथ। ठीक है, और ये भी डेफिनेट प्रोबेबिलिटी है कि कोलाइड ग्राउंड स्टेट वाले के साथ करेगा या एक्साइटेड स्टेट वाले के साथ करेगा। तो अगर ये ग्राउंड स्टेट वाले के साथ कोलाइड कर गया, तब ये ग्राउंड स्टेट वाले एटम को ऊपर ले आएगा। और जो राइट साइड में है, राइट साइड में आपके पास क्या सिचुएशन है, एटम्स इन above level या metastable state, these are higher as compared to lower level। मैं ग्राउंड स्टेट को लोअर लेवल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम 4 लेवल लेजर में ग्राउंड स्टेट को भी हटा देंगे, इसके ऊपर यहाँ कहीं एक और लेवल ले लेंगे। ठीक है, तो इस वे में ये जो एटम है ये फोर्स करेगा इन एटम्स को रेजोनेंस में ऑसिलेट करने में। इनको फोर्स कर रहा है ग्राउंड स्टेट में आने में। सीड फोटोन तभी डी एक्साइट करवाएगा इन एटम्स को मेटास्टेबल स्टेट में जब आपकी कंडीशन ऑफ पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव हो जाएगी। उससे पहले जो आप बोल रहे हो वही होगा, ग्राउंड स्टेट से ऊपर एक्साइट होंगे। ओके सर। So next we have components of laser. So first ये components of laser. So first one is pump. So अभी ये मैंने एक्सप्लेन किया था कि पंप आपको रिक्वायर क्यों है। पंप इज एन एक्सटर्नल सोर्स दैट सप्लाइज एनर्जी एंड हेल्प्स इन ऑब्टेनिंग पॉपुलेशन इन्वर्जन। आपको ग्राउंड स्टेट से एटम एक्साइटेड स्टेट में लेके जाने हैं, सो यू नीड एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी दैट इज कॉल्ड पंप इन केस ऑफ लेजर। ठीक है, अब पंप जो है डिफरेंट तरह के पॉसिबल हैं। द पंप कैन बी ऑप्टिकल, आप जीनोन फ्लैश ट्यूब या क्रिप्टॉन फ्लैश ट्यूब यूज कर सकते हो। इट कैन बी इलेक्ट्रिकल और थर्मल। थर्मल मतलब आप हीट करके एक्साइट कर सकते हो ग्राउंड स्टेट एटम को, या इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पास करके भी आप फॉर एग्जांपल गैसेस में एटम को एक्साइट कर सकते हो। सो पंप कैन बी ऑप्टिकल, इलेक्ट्रिकल, थर्मल। ठीक है, सो किसी भी वे में आप, आपका मोटिव क्या है, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में लेके जाना इन ऑर्डर टू अचीव पॉपुलेशन इन्वर्जन। एक काय के कंपोनेंट्स हैं सर? लेजर कंपोनेंट्स में लेजर जो बनती है उसमें क्या क्या कंपोनेंट लगे होते हैं। तो पहला पंप, आपको एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए। सेकंड वन, यू नीड ए मीडियम। मीडियम क्यों चाहिए होता है मुझे, या आपको और क्या रिक्वायरमेंट है पंप के अलावा? यू नीड एनर्जी लेवल्स जिनके बीच में पंपिंग कर रहे हो। ठीक है, एनर्जी लेवल के लिए ये किसके एनर्जी लेवल्स हैं? ये एनर्जी लेवल्स हैं उस मीडियम के। एटम किसी मीडियम मटेरियल का तो होगा ना। तो लेजर मीडियम इज द मीडियम इन विच लेजर एक्शन टेक्स प्लेस। तो ये जिस एटम के एनर्जी लेवल्स हैं उसका मॉलिक्यूल भी तो यहाँ होना चाहिए ना, उसका मटेरियल भी यहाँ होना चाहिए, दैट इज मीडियम। सो इट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड में आपके पास रूबी लेजर आ जाएगा। ठीक है, गैसेस में आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा, एंड वी हैव हीलियम नियॉन लेजर एज वेल एंड अदर कैटेगरीज ऑफ लेजर। तो आपके सिलेबस में जो है वो है रूबी लेजर एंड हीलियम नियॉन लेजर। रूबी लेजर इज सॉलिड स्टेट डिवाइस, सॉलिड लेजर है, इसमें सॉलिड मीडियम यूज होगा, एंड हीलियम नियॉन इज गैसियस लेजर।
ठीक है जी। और रूबी लेजर में आप ऑप्टिकल पंपिंग यूज करोगे, क्रिप्टॉन या ज़ीनॉन फ्लैश ट्यूब्स यूज करोगे, और हीलियम नियॉन में इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, गैस है तो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज यूज करोगे। थर्ड कंपोनेंट है बजे, और क्या रिक्वायरमेंट है बजे आपको, एनी आइडिया? थर्ड एंड फाइनल कंपोनेंट, you need a resonator. Resonator में क्या होगा? It consists of pair of plane or spherical mirrors. So this is mirror 1. मैं यहाँ पे लेजर ये प्लेस कर देता हूँ, ठीक है, and this one is mirror 2. So combination of M1 and M2, this is called resonator. Any idea कि ये क्यों प्लेस किया है ऐसे लेजर को इसमें? Reflection coefficient of M1 is 1 and reflection coefficient of M2 is less than 1. Close to 1 but less than 1. So ऐसा क्यों किया आपने? यहां से फॉर एग्जांपल अगर लेजर यहां से आउटपुट है, ये आउटपुट है अगर लेजर की, तो लेजर यहां से बाहर आई, इट विल हिट दिस मिरर, तो क्या होगा भाई? व्हाट विल हैपन? सर अगर मिरर के नॉर्मल पे गिरी तो फिर वो वापस वही 180 डिग्री पे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, क्यों? कितना परसेंट रिफ्लेक्ट होगी? फॉर एग्जांपल इसका रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट है R इज इक्वल टू 0.8, लेस देन 1 बोला मैंने, 0.8 रख दिया मैंने, एम्पलीट्यूड रिड्यूस हो जाएगा। बच्चे रिफ्लेक्ट तो होगी बट 80% होगी अब, क्योंकि आपका रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट 0.8 है फॉर एग्जांपल। सो 80% विल रिफ्लेक्ट बैक एंड 20% विल कम आउट, ठीक है जी। 80% जो है रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, यही मतलब हुआ ना रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट का, कि 20% 0.2 जो है वो ट्रांसमिशन हो जाए, बिकॉज रिफ्लेक्शन प्लस ट्रांसमिशन इज 1, so if this is 0.8, so then transmission is equal to 0.2, so 20% पास करके 80% रिफ्लेक्ट बैक होगी। ऐसा हमने क्यों किया? और ये जब है फॉर एग्जांपल यहां से ये जो 80% रिफ्लेक्ट हो गई, इफ दिस लाइट इज फॉलिंग ऑन मिरर 1, अब क्या होगा? इट हैज रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट ऑफ 1, सो 100% रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। 100% रिफ्लेक्ट बैक, ठीक है। सो आपको यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं मिलेगा, 100% विल रिफ्लेक्ट बैक। सो ये एक तरह का आपका फीडबैक हो गया, बिकॉज फॉर स्टिमुलेटेड एमिशन यू नीड सीड फोटॉन्स एज वेल, ठीक है। सीड फोटॉन होगा तभी तो आपका जो ट्रांजिशन है स्टिमुलेटेड एमिशन पॉसिबल होगा, ठीक है। और सीड फोटॉन की क्या कंडीशन है? रेजोनेंस वाली कंडीशन, E2 - E1 के बराबर की उसकी एनर्जी होनी चाहिए। सो ये जो हमने कुछ पोर्शन आउटपुट का 80% जो है ये ले लिया और फीडबैक वापस कर दिया, सो दैट this seed photon again these photons they will pass again through the laser and will act as seed photon, ठीक है जी। सो दिस इसी पर्पस के लिए हमने रेजोनेटर यूज किया। आप इनको अलाइन भी कर सकते हो, ये जो फोटोन है डिफरेंट डायरेक्शन में, बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये यूनिडायरेक्शनल भी हो जाएंगे, और सम पार्ट ऑफ द फोटोन विल आल्सो बी यूज्ड एज सीड फोटोन। क्लियर अब? इसीलिए हमने यहाँ पे 100% रिफ्लेक्शन रखी है, क्योंकि हमें एक एंड पे कोई भी आउटपुट नहीं चाहिए, वी नीड आउटपुट एट दिस पॉइंट ओनली। सो बाय पॉलिशिंग द मिरर्स यू कैन एडजस्ट द आउटपुट, कि 20% चाहिए, 30% चाहिए, 10% चाहिए, इट डिपेंड्स, ठीक है। सो बाय एडजस्टिंग। सर एक बार रेजोनेटर फिर से बताना तो। रेजोनेटर मुझे रेजोनेटर इज बेसिकली a feedback device, ठीक है, that directs photon back and forth through the laser medium. So this is your laser medium, through the laser medium, and in the process number of photon is multiplied due to stimulated emission. So मैं एक अलग से बना के दिखाता हूँ। If this is कंटिन्यूअसली एमिशन कराने के लिए, हाँ कंटिन्यूस एमिशन के लिए, yes. इसमें क्या होगा, अगर आप कुछ पार्ट फीडबैक का यूज कर रहे हो, जैसे आप एम्पलीफायर में यूज करते हो ना, सर्टेन पार्ट इज यूज्ड एज फीडबैक, इसमें भी ऐसा होगा। अब आपको जो
आउटपुट एक्सटर्नल एनर्जी है, जो पंप आप यूज कर रहे हो, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये सीड फोटोन के लिए आपको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी. Pump is only used, can only be used for exciting the atom from ground state to excited state. जबकि आपको तो सीड फोटोन के लिए भी एनर्जी चाहिए. So that energy we can take from output back to the input, so that these photons they move back and forth between the laser medium and we are getting amplified output. ठीक है जी. So resonator का मतलब ये है. क्लियर हुआ मुझे? यस सर, यस सर. और ये रिफ्लेक्शन हमने पार्शियली पॉलिश्ड इसलिए रखा है, 100% पॉलिश नहीं रखा, क्योंकि हमें कुछ आउटपुट भी चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि लेजर के अंदर ही लाइट घूमती रहे, बाहर ना निकले. सो वी नीड सर्टेन आउटपुट. सो दैट इज व्हाई M1 मिरर इज 100% पॉलिश्ड एंड M2 इज पार्शियली पॉलिश्ड. ओके सर. सर ये मिरर के ऊपर क्या लिखा आपने, लेस देन 1 से पहले? रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट स्मॉल r. ठीक है जी. सो इसमें जब मैं बिफोर मूविंग ऑन टू द रूबी लेजर एंड हीलियम नियॉन, I'll make you clear what is 3 level laser and what is 4 level laser. So 3 level versus 4 level. So if this is excited state, this one is ground state of the medium which we are using in the laser, and this is metastable state. So इसको E1 लिख देता हूँ, इसको E2, इसको E3, मेटास्टेबल स्टेट. ठीक है जी. सो ये है 3 लेवल लेजर. ठीक है. अब यहां से यहां तक एक्साइटेड स्टेट में जाएगा. कैसे? बाय यूजिंग दी पंप. ये एक्साइटेड स्टेट में चला गया. एक्साइटेड स्टेट से मेटास्टेबल स्टेट में आएगा बाय फास्ट नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशंस, या डिफरेंट फोटोन भी एमिट कर सकता है. नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशंस इट मींस वो हीट अप हो जाएगा, या फोटोन एमिट करेगा ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी. ठीक है जी. और उसके बाद इसको मैं ग्राउंड स्टेट को थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ. इसके बाद ये मेटास्टेबल स्टेट से यहां जाएगा, डी एक्साइट होगा बाय स्टिमुलेटेड एमिशन. ठीक है. इसको लेजिंग एक्शन भी बोलते हैं. सो लेजर एक्शन आपका E3 और E1 के बीच में हो रहा है. क्लियर है बच्चे? 3 लेवल. अब आपको जो पॉपुलेशन इन्वर्जन, सेकंड लेवल क्या है सर? बच्चे ये ऐसी लाइन है, ये लग गई, तो ये नहीं है. सो आपके पास लेवल नंबर 1, लेवल नंबर 2 एंड लेवल नंबर 3. ओनली 3 लेवल्स आर देयर. ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट एंड मेटास्टेबल स्टेट. सर वो नहीं सर, ये 3 लेवल एमिशन में सेकंड लेवल पूछ रहे हैं सर. आपने पहला तो पंप बोला सर. बच्चे पंप नहीं है, मैं बोल रहा हूँ कि ग्राउंड स्टेट से एटम जो है फर्स्ट लेवल से सेकंड लेवल पे कैसे जाएगा, यूजिंग द पंप. एक्सटर्नल सोर्स है ना, ये पंप है, इसमें से कुछ एनर्जी इस एटम को जाएगी. कितनी एनर्जी? h न्यू वाली. ये तभी तो एक्साइट होके ऊपर जाएगा, यहाँ पे पहुंचेगा. ओके सर. ठीक है. सो अब ये जो पॉपुलेशन इन्वर्जन है, ये आप किन लेवल्स के बीच में अचीव करोगे 3 लेवल लेजर में? कौन से लेवल इन्वॉल्व होंगे पॉपुलेशन इन्वर्जन में? जिन लेवल्स में आपका लेजर एक्शन हो रहा है. लेजर एक्शन किस लेवल्स के बीच में हो रहा है? E3 E1. E3 एंड E1. सो E3 एंड E1 इन लेवल्स के बीच में आपका पॉपुलेशन इन्वर्जन होना चाहिए. ठीक है. इसका क्या मतलब है कि थर्ड लेवल में यहाँ पे एटम्स ज्यादा होने चाहिए एज कंपेयर टू दिस लेवल, जो कि आपको डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि आप यू आर डीलिंग विद ग्राउंड स्टेट जाइंट है जिसका लाइफ टाइम इन्फिनिटी है. ठीक है. सो इसमें अगर आपको ये कंडीशन, इवन मेटास्टेबल स्टेट के साथ भी इट इज डिफिकल्ट टू अचीव दिस सिचुएशन, पॉपुलेशन इन्वर्जन, क्योंकि यू आर डीलिंग विद ग्राउंड स्टेट. इसका क्या सोल्यूशन है? मैं ग्राउंड स्टेट को रिमूव कर देता हूं. ठीक है. अब यहां पे क्या होगा, 3 लेवल में आपको, अब
अगर आपने एक्साइटेड स्टेट हटा भी दिया, मेटास्टेबल स्टेट भी लिया है जिसका लाइफ टाइम 10⁻³ सेकंड्स है, अब भी आपको पंप जो है ज्यादा एनर्जी वाला चाहिए, बहुत आपको एनर्जी चाहिए इन ऑर्डर टू अचीव द कंडीशन ऑफ पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो इसका जो सोल्यूशन है बच्चे, मैं वैसे ही एनर्जी लेवल बनाता हूँ। ये ग्राउंड स्टेट है, ये एक्साइटेड स्टेट है आपके पास, ये है मेटास्टेबल स्टेट, ठीक है। ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, मेटास्टेबल स्टेट, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। सो मैं ऐसा मीडियम कंसिडर करूंगा जिसमें मेरे पास एक और लेवल हो इस तरह से, ठीक है। क्लियर है बच्चे? सो वो स्टेट मेटास्टेबल स्टेट से भी और स्टेबल होगा ना? हाँ, एक्साइटेड स्टेट है मुझे, मेटास्टेबल स्टेट नहीं है वो, या आप रख सकते हो मेटास्टेबल स्टेट भी, बट मेटास्टेबल, ये जो मेटास्टेबल स्टेट 1 है इसके नीचे होनी चाहिए, चाहे एक्साइटेड हो चाहे मेटास्टेबल हो, मेटास्टेबल स्टेट 2, ठीक है। अब आपने क्या किया, यहाँ पे लाइफ टाइम इन्फिनिटी था, ठीक है। यहाँ पे लाइफ टाइम था 10⁻8 सेकेंड्स, यहाँ पे लाइफ टाइम है 10⁻³ सेकेंड्स। फॉर एग्जाम्पल ये मेटास्टेबल स्टेट 2 है, तो मैंने इसका लाइफ टाइम 10⁻8 सेकेंड्स यहाँ भी रख दिया। अब देखो क्या सीन है कि आपने एटम ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पंप करवा दिए बाय यूजिंग एक्सटर्नल सोर्स। E2 लेवल, ये जो है E2, इसको लिख देता हूँ E2, ये है E1, ये है E3, ये है E4 फॉर एग्जाम्पल। सो E1 से E2 आपने पंप करवा दिए, E2 से E3 ये है नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशंस, है ना। मेटास्टेबल स्टेट पे अब एटम पहुंच गए काफी। नाउ ये अगर आपका लेजर एक्शन यहाँ E3 से E1 में होने की बजाय E3 से E4 में हो जाए, आपका यहाँ एटम डी एक्साइट कर जाए, और यहाँ आपके पास ये जो सीड फोटोन आया ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाए, तो कैसा रहेगा? पॉपुलेशन इन्वर्जन अब किन के बीच में हो रही है? E3 E4 पॉपुलेशन इन्वर्जन हो रही है अब E3 और ये जो फोर्थ लेवल है E4। सो E3 एंड E4 पॉसिबल है करना इसको। E3 हैज लाइफ टाइम ऑफ 10⁻³ सेकेंड्स, E4 हैज लाइफ टाइम ऑफ फॉर एग्जांपल 10⁻8 सेकेंड। अगर ये एक्साइटेड स्टेट है, लोअर एनर्जी की है पर एक्साइटेड स्टेट है, तो यहाँ इसका मतलब है एटम E3 में ज्यादा देर रहेंगे एज कंपेयर टू E4, विच इज क्वाइट एविडेंट फ्रॉम देयर लाइफ टाइम एज वेल, ठीक है। सो यहाँ आपको प्रैक्टिकली एनर्जी चाहिए ही नहीं, प्रैक्टिकली नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर अचीविंग पॉपुलेशन इन्वर्जन बिटवीन E3 एंड E4। एनर्जी किस लिए चाहिए? एनर्जी आपको चाहिए E1 से E2 में पंप करने के लिए। यहां अगर आप पंप अप करोगे तभी आपके पास एक्साइटेड स्टेट में एटम आएंगे ना, जो डिके करेंगे, डी एक्साइट करेंगे E3 लेवल में, ठीक है। अब आपने क्या किया, जो लेजर एक्शन होना था जिसमें ग्राउंड स्टेट इन्वॉल्व था, यहाँ ग्राउंड स्टेट इन्वॉल्व था, आपने इसको हटा ही दिया। क्यों? क्योंकि E3 का लाइफ टाइम अगर 10⁻³ सेकेंड्स है तो E1 जो ग्राउंड स्टेट है उसका इन्फिनिटी था। ये लाइफ टाइम को अगर आप कंपेयर करो, यहां से भी आपको एविडेंट नहीं था कि आप इनके बीच में पॉपुलेशन इन्वर्जन इजिली अचीव कर सकते हो। बट ये जो है सेकंड जो राइट हैंड साइड पे, यहाँ आप क्लियरली देख रहे हो कि E3 में ज्यादा देर रहेंगे एटम एज कंपेयर टू E4। So N3 number of atoms in third level are always greater than number of atoms in fourth level. So ये जो आपकी population inversion वाली condition है कि ऊपर वाले level में atoms ज्यादा होने चाहिए as compared to the lower level। मैं इसलिए lower level का word use कर रहा था because lower level can be ground state or another low lying excited state, ठीक है जी। So अब आपके एटम यहाँ पे तो आपकी लेजिंग एक्शन हो गई यहाँ पे, ठीक है जी। तो यहाँ जब एटम आए E4 लेवल में, क्या चांसेस है बच्चे, कहां जा सकते हैं? Ground. They will de-excite to ground state by non-radiative transition या कोई और frequency de-excite,
और क्या पॉसिबिलिटी है? E4 से वापस E3 में भी तो जा सकते हैं, Yes, sir. है ना? So there is certain possibility, certain probability that they will move on to E4 to E3. ठीक है जी? So the right hand side पे आपके पास है 4 level laser. First level, second level, third level and fourth level. So 4 level laser. So आपने अभी क्या नोटिस किया कि 3 लेवल में लेजर एक्शन करना डिफिकल्ट है, आपको ज्यादा एक्सटर्नल एनर्जी चाहिए एज कंपेयर टू 4 लेवल, क्योंकि 4 लेवल में आपको एविडेंट है E3 और E4 में आपको कुछ एनर्जी नहीं चाहिए, आपका पॉपुलेशन इन्वर्जन ऑलरेडी अचीव्ड है बिकॉज ऑफ देयर रिस्पेक्टिव लाइफ टाइम्स. क्लियर अब द डिफरेंस? एनी डाउट रिगार्डिंग डिफरेंस बिटवीन 3 level and 4 level laser? Ruby laser is a 3 level laser and helium neon laser is 4 level laser. ठीक है जी? तो ये रूबी लेजर और हीलियम नियॉन लेजर बचे लेजर में हमारे पास. तो ये नेक्स्ट क्लास में करते हैं. ओके.